Elections. A fresh political firestorm is underway in the national capital over the welfare schemes. In a big development, the Women and Child Development Department of the Delhi government and the Health Department have issued a public notice refuting the claims of a new welfare scheme for women and the elderly. The notice comes after reports and social media posts that were circulated by a political party claiming that women in Delhi would receive 2,100 rupees per month under the so-called Mukhyamantri Mahila Samman Yojana and free healthcare for the elderly above 60 years under the Sanjeevani scheme. The Delhi government has made it clear that no such scheme has been notified and that the claims are entirely false. This public notice also warns that since no such scheme exists, any private individual or political party collecting forms or personal information from women in the name of non-existent schemes is committing fraud and has no legal authority to do so. Remember, just a while ago, Delhi Chief Minister Atishi and the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal also addressed a press conference hitting back at the controversy surrounding the welfare schemes. In a strong statement, Kejriwal and Atishi alleged that the recent public notices are fake and were published under pressure from the BJP. जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। Now we have updates coming in of the BJP that has hit back at the Aam Aadmi Party's allegations. Addressing a press conference, the Delhi BJP president Virendra Sachdeva has also accused the Aam Aadmi Party of cheating the people of Delhi. So these were the schemes that were announced by the Aam Aadmi Party ahead of the elections in Delhi, and while making the announcement, Arvind Kejriwal had also said that the numbers will only increase and 2,100 rupees will be given to the women. But now an ad that you're seeing on the screens, a notice had been given out saying there is no such scheme that exists. Listen in to the BJP's reaction. कोई भी संवेदनशील जानकारी साझी करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। और फिर सरकार इससे पल्ला झाड़ ले कि इस स्थिति में नागरिक खुद जिम्मेदार है। हम डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे डिजिटल फ्रॉड करने वाले करते हैं। एक योजना जो कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुई, एक योजना जो संजीवनी कैबिनेट में आई नहीं, जिसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, आप उसे मुख्यमंत्री की योजना कैसे कहकर उसके नाम पर कैसे जनता का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, ये हैरान करने वाला है। आपको अरविंद केजरीवाल करना क्या था? आपको करना था कि 12 साल के बाद दिल्ली की जनता के सामने आते, उन्हें बताते कि देखो 12 सालों में हमने आपको गंदा पानी पीने का दिया है, हम आपको पानी नहीं दे पाए हैं। आज दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, हम आपको सड़कें नहीं दे पाए हैं। आज बिजली के नाम पर बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं जो हम नहीं कर पाए हैं। उन सब योजनाओं पर आकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था, या फिर उस जो आपने अपना आवास एक महल बनाया है भ्रष्टाचार का, जिसको हम म्यूजियम ऑफ करप्शन कहते हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। आप उसकी बातें नहीं करेंगी। पंजाब में इस योजना के नाम पर आप पहले पंजाब की जनता को ठग चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी आप कह रहे थे कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, सितंबर तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, नहीं आए। आज फिर जब चुनाव सर पर है तो आप बिल्कुल एक डिजिटल चोरी की तरफ दिल्ली की जनता को धकेल रहे हैं। हम
ये जो रीपैकेजिंग होती है ना स्कीम्स की, अरविंद केजरीवाल उसके मास्टर हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर महिला सम्मान की इतनी चिंता होती तो उन्हें मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से सीखना चाहिए था। आज नहीं, 1,29,00,000 से ज्यादा माताएं बहनें उसकी लाभार्थी हैं।